Good morning, my dear students of 7th grade. Today we are going to discuss about expansion and contraction. We know that most of the substances expand on heating and contract on cooling. Let us perform some experiment to study this property. First is expansion in solids. अब solids में कैसे expansion होती है? We have to perform an activity. To understand the expansion in solid, material required is 2 blocks of wood, iron rod and spirit lamp. Procedure: take 2 blocks of wood and place an iron or tin rod on them. Fix the rod firmly on one side. Insert a pencil under the other end of the rod. Make a pointer and stick it to the edge of the pencil. Place a spirit lamp under the rod and heat the rod. Observation: the pointer moves to the outward. Conclusion: the rod expands on heating and pushes the pencil outward. Aim: to demonstrate thermal expansion in solids by Gravesend's ring and ball experiment. Material required: an iron bowl and iron ring, a metal stand and a lamp. The ball should just pass through the ring. Procedure: suspend the ball by metal chain from the hook of the stand. Now heat the ball and then try passing the ball through the ring. What do you observe? Now cool the ball and try passing it through the ring again. What do you observe? Observation: when the ball is heated, it does not pass through the ring. Conclusion: this is because ball expand on heating, which prevent it from passing through the ring. When the ball is cooled, it easily pass through the ring. This show that solid expand on heating. ठीक है, इस दो एक्टिविटीज से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग बट कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग. नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. अब लिक्विड में एक्सपेंशन कैसी होती है? इफ़ यू फिल अ कैटल विद वाटर right up to the brim and then put it over a fire, the water will overflow as it become hot. हम अपने घरों में देखते हैं कि जब वाटर हॉट होता है वो क्या करने लग जाता है? ओवरफ्लो. दिस इज बिकॉज लिक्विड्स ऑल्सो एक्सपैंड व्हेन हीटेड. ठीक है, लिक्विड भी क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं जब वो हीट हो जाते हैं. To show expansion in liquid, let us perform the following activity. To study the expansion in liquid, a test tube with stopper, some water and a lamp. Procedure: take the test tube and fill it to the brim with water. Take a rubber stopper with the hole in the center. Insert a hollow glass tube in this hole and fix the stopper to the tube so that a little liquid rises in the tube. Now heat the test tube over a flame. Observe the level of liquid in the thin tube. Now stop the heating and let the test tube cool down. Observe what happens to the level of the liquid. Observation: the liquid level of the liquid moves upward. Water conclusion क्या हो गया? Water expand on heating. Next, abnormal और anomalous expansion of water. अब उसके anomalous expansion क्या होती है वाटर की? Most of the liquid expand uniformly over moderate ranges of temperature except water. ठीक है, जो बहुत से लिक्विड होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करते हैं ओवर मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर पर. वाटर शोज अ मार्क्ड एक्सपेंशन व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर हम वाटर क्या शो करते हैं? मार्क्ड एक्सपेंशन शो करता है जब हम उसे हीट करते हैं बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस. इनिशियली इट कन्वर्ट्स इनटू वॉल्यूम अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. इनिशियली क्या होता है? उसका वॉल्यूम अप हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीजेज. इनफैक्ट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम. ठीक है, जो उसकी डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है बिकॉज डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी कब ज़्यादा होगी? जब वॉल्यूम कम होगा. एट 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का होता है वॉल्यूम वो क्या होता है? मिनिमम होता है. दैट्स व्हाई वी से दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम. नेक्स्ट, सम प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एबनॉर्मल एक्सपेंशन. इसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश,
एटसेट्रा डू नॉट डाई इन वाटर इन स्पाइट ऑफ फियर कोल्ड। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है वो वाटर में क्यों नहीं डाई करते? बिकॉज द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट डाई इन स्पाइट ऑफ फियर कोल्ड ड्यू टू विच वाटर फ्रीज इन टू द आइस because temperature of water at the bottom remains at 4 degree centigrade and hence water does not freeze at the bottom। ठीक है, जो वाटर होता है, जो बॉटम पर वाटर होता है वो फ्रीज नहीं होता, जो उसका सिर्फ अपर लेवल होता है वो फ्रीज होता है। वाटर पाइप समटाइम बर्स्ट इन वेरी स्फीयर कोल्ड। जो वाटर पाइप्स होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड में। ऐसा क्यों होता है? इन वेरी कोल्ड डेज द फ्लोइंग वाटर इन पाइप्स फ्रीजेस। जो फ्लोइंग वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है। हैंस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर वाटर पाइप्स बर्स्ट, जिसके कारण वाटर पाइप क्या करती हैं? बर्स्ट करती हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन गैसेज। अब गैसेज में एक्सपेंशन कैसे होती हैं? यू हैव सीन हाउ वाटर एक्सपैंड व्हेन इट इज हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज कूल्ड। ऑल लिक्विड शो दिस प्रॉपर्टी। विल एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज डू द सेम थिंग? Will it expand when it is heated and contract when it is cooled? To show this expansion of gases, perform the following activity. The gases expand even when a very little heat is supplied. जब हम उसे गैसेस को थोड़ी सी हीट भी सप्लाइड करते हैं वो क्या हो जाती हैं? एक्सपैंड हो जाती हैं। Stretch a balloon over the neck of an empty bottle. Remember that air is all around us and that is also present in the bottle. The outside air cannot get into the bottle. हमें पता है जो हमारी एयर होती है ऑल अराउंड अस होती है। हमने एक बैलून लेना है, उसे एम्प्टी बॉटल के ऊपर उसकी नेक रखनी है, तो उसे हमें पता है कि एयर सारी जगह होती है, तो बॉटल में भी क्या होगी? एयर होगी। हमें क्या करना है? प्लेस दी बॉटल ओवर दी फ्लेम। ठीक है, हमने फ्लेम पर रखनी है और इनसाइड some hot water, the air inside the bottle will expand. When it gets hot, it will rise into the balloon and fill it. Now let the bottle cool. What will happen to the balloon? जब बॉटल कूल होगी तो क्या होगा? वॉल्यूम बैलून क्या हो जाएगा? उसके फूला था। फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर एक्सपैंड एंड देन क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यूजेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। अब हमें सॉलिड्स के जो एक्सपेंशंस होती हैं उसके कारण उसके क्या यूजेस होते हैं? एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स। इन सम केसेस it gives us trouble whereas in other cases it is useful. Gaps are left between the rail joints allow for expansion. ठीक है, जो हमारी रेल ट्रैक्स होते हैं उनमें गैप्स क्यों दिखाई देता है, क्यों छोड़ा जाता है? बिकॉज इन द समर डेज जो हमारे जो आयरन के वो होते हैं वो आयरन पीसेस क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। द लॉन्ग रेलवे लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ। जो हमारे रेल ट्रैक्स होते हैं उसके आयरन पीसेस क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं इन समर सीजन्स। द लॉन्ग रेलवे लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ स्टील पीसेस कॉल्ड रेल्स। Small gaps are left between the rail pieces to provide space for the expansion of the rail pieces when the temperature rises during summer. इन लार्ज ब्रिजेस में क्या होता है? इन मेकिंग लार्ज ब्रिजेस वन एंड इज केप्ट फिक्स्ड। उसका एक एंड क्या होता है? फिक्स्ड होता है एंड अदर रेस्ट ऑन द रोलर टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, फिक्सिंग ऑफ एन आयरन रिम ऑन अ वुडन wheel of a bullock cart. When an iron rim is to be fixed on a wooden wheel of a bullock cart, the ironsmith always heat the rim first. This expands the rim so that it slips easily on the wheel. As the rim cools, it contracts to its original size and fit tightly in the rim. ठीक है, उसके जो bullock cart के होते हैं उसमें सेम आइडिया यूज होता है एक्सपेंशन इन सॉलिड्स वाला। नेक्स्ट, लूप्स आर प्रोवाइडेड इन मेटल पाइप्स। जो मेटल पाइप्स होते हैं उनमें लूप्स प्रोवाइड करते हैं टू अलो एक्सपेंशन। ठीक है, ताकि क्या हो सके? एक्सपेंशन हो सके। बिकॉज इन समर सीजन जो हमारा आयरन है वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है। टेलीफोन वायर्स सैग मोर इन समर ड्यू टू एक्सपेंशन। जो हमारी वायर्स होती हैं वो सैग करती हैं। ठीक है, मीन्स उनमें क्या होता है? बेंट डाउनवर्ड। The telephone wires fixed out to the poles in summer, we will find they are quite loose. On other hand, the same wires appear to be tightly fixed in winter.
This is due to the fact that in summer the temperature is high, due to which the wire expands and sags more, but in winter season the temperature falls down, due to which the wire contracts and become tight. This is all about the expansion and contraction. In the next AV we will discuss about transmission of heat. Thanks and have a nice day.